Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, as new joining is happening, so always there is a question, sir, what is role of a bank clerk and what type of duties we have to do and what is our future? So we will cover all these three aspects in nutshell. Clerk means first level employee of the bank who interact with the customer. In banking, we have maker checker procedure. Maker checker means there is one person who will initiate the transaction. There is another person who will check this transaction, and then the transaction is called complete. So whenever customer visits a branch, he first deal with the clerk. Clerk is front line employee of the organization. Say a person wants to encash the check. So he will hand over check to the clerk. Clerk will post this check into the computer system. Then this check will be passed on to the officer for checking, and after passing this check, the payment will be made by the cashier. This is a normal flow of transaction. But clerks are given powers to make payment without checking by officer up to a certain amount, and that system is called teller. So in teller system, the customer hand over the check to the clerk check verify himself and makes the payment. So clerk is first interaction with the customer, and that's why clerk is a very important role in banks. And the experience on clerical seats makes him eligible for next promotion. So the clerks gets chance to become officer depending upon the length of service decided by the banks. In certain banks they become eligible after 3 years, in some banks after 4 years, in some banks even after 2 years. These clerks have to appear for a written exam, and after passing that written examination, an interview is being carried out. And after aggregating both the marks written and interview, a merit is declared and accordingly promotion is given. In this written examination is totally different than the bank entrance examination. In this bank written examination there is no paper of quant, reasoning, English like that. Rather, this paper comprises of banking knowledge. So whatever are your guidelines of your bank in routine banking, loans, foreign exchange, and all economic related questions are asked. So whenever you join the bank, you should immediately start JIB, CIB. CIB and JIB are the two courses which allows you to acquire knowledge in the field of finance and banking. Plus, you should read the manuals of the bank and the circulars of the bank. These manuals, circulars, and the job cards, these all sort of things helps you acquire knowledge of banking. More and more knowledge you acquire, higher marks you will score in the written examination and interview, and you will get the promotion. Internal promotions are comparatively easier than directly coming as PO, because there are large number of candidates aspire for those positions. In departmental promotion, the selected candidates are aspiring for promotion. Certain banks, even such situations have also emerged in past when number of post was higher than number of eligible candidates. So it was very easy walk. And that's why some people say it is very easy to become officer from clerical. But this situation will not remain forever, because such situations only emerges during a short period of time when there is a mismatch. Usually you have to fight a competition and get the promotion. So don't be lethargic by seeing the past examples, because promotions is going to become tougher from 2023 onwards, when there will be very little retirements. And that's why I say, if you are joining as clerk today, it is better option is you should also look for probation officer examination and become officer directly, because by the time you will become eligible for promotion,
there is a chances that the chances may be very less. So if you are just waiting for departmental promotion, you may be in for a surprise, because the past experience does not ensure that in future also there will be fast promotions. So you should be careful, and I will advise all the clerks, those are joining this year or joined last year, they should aggressively prepare for PO examination also. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। बैंक में जो क्लरिकल पोजीशन है वो पहली पोजीशन है जो कस्टमर के कांटेक्ट में आता है। ये फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज हैं बैंक के। बैंक में जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं मेकर एंड चेकर। मेकर एंड चेकर का मतलब है एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन को बनाता है और दूसरा व्यक्ति उसको चेक करता है। जो इस ट्रांजैक्शन को बनाता है वो क्लर्क कहलाता है, जो इसको चेक करता है वो ऑफिसर कहलाता है। तो जब कस्टमर आपके पास आता है, मान लीजिए उसको पेमेंट चाहिए अपने अकाउंट से, तो वो चेक आपको देता है। इस चेक को आप कंप्यूटर में फीड करते हैं उसकी डिटेल्स, फिर ऑफिसर उस ट्रांजैक्शन को चेक करता है। काफ़ी बैंकों में चेकिंग की पावर क्लर्क्स को भी दी गई है अप टू सम अमाउंट। इस पद्धति को हम टेलर बोलते हैं। यहाँ पर जो चेक है कस्टमर आपको देता है और क्लर्क ही इसको चेक करता है और पेमेंट कर देता है, तो उसमें ऑफिसर का रोल नहीं होता है। क्लरिकल जॉब के अंदर आप एज ए कैशियर भी काम कर सकते हैं और क्लरिकल ड्यूटीज़ भी आपको मिलती है। मोस्टली जो भी वोचर्स हैं या जो भी काम है वो कंप्यूटर में फीड करना क्लरिकल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। क्लर्क से ऑफिसर की प्रमोशन डिपार्टमेंटल होती है, और क्योंकि क्लरिकल के अंदर आप काम करते करते काफ़ी नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो आपको ऑफिसर बनने में आसानी होती है। प्रमोशन के लिए अधिकतर बैंकों के अंदर रिटर्न एग्ज़ाम किया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम है ये डिफरेंट है जो पीओ के लिए होता है। जैसे पीओ के अंदर आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। बट जो बैंक में इंटरनल प्रमोशन होती है उसमें आपको बैंकिंग संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके कवर होते हैं जो बैंक की बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल्स हैं, बैंक के सर्कुलर्स हैं, जनरल बैंकिंग से संबंधित बातें हैं या इकोनॉमिक बातें हैं, इस पे क्वेश्चंस होते हैं, अकाउंट्स हैं। तो इसकी नॉलेज हमें साथ साथ एक्वायर करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप JIB CIB अटैम्प्ट करें, उसको पास करें, इससे आपको काफ़ी नॉलेज होगी। तो जैसे ही ये कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, कई बैंकों में 2 साल के बाद, कई बैंकों में 3 साल और कई बैंकों में 4 साल, हर बैंक की अलग पॉलिसी है, और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स भी बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। तो प्रमोशन पॉलिसी कोई कांस्टेंट नहीं होती है बैंक की, इट अंडरगोज चेंज। वक्त वक्त पे इसमें बदलाव होते रहते हैं। जो आज की स्थिति है उसमें कुछ बैंकों में 3 साल, कुछ में 4 साल की स्थिति है। जब आपका ये मौका आता है तो आपको रिटर्न पास करना है, फिर इंटरव्यू पास करना है, फिर मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे प्रमोशन होती है। कई लोग स्वेड होते हैं पास्ट परफॉर्मेंस से कि पास्ट में तेज प्रमोशन हुई है तो भविष्य में भी तेज होगी, ऐसा नहीं होता है। प्रमोशन सिनेरियो बार बार बदलता है बैंकिंग के अंदर। पिछले दिनों में कुछ ऐसे भी सीन आए हैं कि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी और नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट कम थे, तो जो भी बैठा वो बन गया। पर ऐसी भी स्थिति आती है जब 4 में से 1, 5 में से 1, 10 में से 1 क्लर्क भी ऑफिसर बनता है। आने वाले वक्त में प्रमोशन स्लो होगी 2023 के बाद। तो यदि हम अब क्लर्क लग रहे हैं या 1-2 साल से क्लर्क हैं, तो PO के लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए कोशिश करते हैं तो आप जल्दी अफसर बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन की वेट करते हैं तो आप देर में बनेंगे, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि आपको गाइड करें, देखो वो आदमी 3 साल में बन गया था, आप भी बन जाओगे, आप बैंक मत छोड़ के जाओ, यहीं पे बन जाओ। ये सब थ्योरी है, क्योंकि कौन से साल में फास्ट हो जाती है प्रमोशन, कौन से में स्लो हो जाती है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। कितने लोग उस साल रिटायर हो रहे हैं, कितने लोगों की वैकेंसीज अराइज होगी, कितना बैंक का बिजनेस ग्रो किया, ये उस पर डिपेंड करता है। कोई फिक्स नहीं होती है वैकेंसीज, और बैंकिंग में कोई टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होती है, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है
वैसे वैसे वैकेंसीज डिसाइड होती है। अगर आप अपने पूरे कैरियर में देखेंगे तो कभी आपको बहुत फास्ट प्रमोशन मिलेगी और कभी आपको स्लो प्रमोशन के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। पिछले 10-15 सालों में ये देखें तो बहुत फास्ट प्रमोशन हुई हैं बैंकिंग के अंदर। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 10-15 साल पहले एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था, आज वो चीफ मैनेजर और एजीएम रैंक तक भी पहुंच गए हैं। पर ऐसे भी पीरियड आते हैं जब आप एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो 8 साल 9 साल आपको स्केल 2 बनने में भी लग सकते हैं। तो ये फेजेज है, क्योंकि टोटल जो कैरियर स्पैन है वो 35 साल के करीब का होता है। तो कई बार आपको अर्ली प्रमोशंस मिल जाएंगी शुरू की, तो बाद की प्रमोशन लेट मिलेंगी, और कई बार आपको शुरू की प्रमोशन लेट मिलेंगी, बाद की प्रमोशन जल्दी मिलेंगी। तो अच्छा कैरियर है बैंकिंग, मगर अगर आप क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो पीओ के लिए आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।